یہ رسول اللہ کا فیضان ہے، یہ رسول اللہ کا فیضان ہے جو ہمارے سینوں میں ایمان ہے، جو ہمارے سینوں میں ایمان ہے، اور نار دوزخ اس کو چھو سکتی نہیں، نار دوزخ اس کو چھو سکتی نہیں، آپ پر جس کا بھی دل قربان ہے، آپ پر جس کا بھی دل قربان ہے۔ اور مصطفیٰ کے عشق سے خالی ہو جو، مصطفیٰ کے عشق سے خالی ہو جو، در حقیقت ایسا دل ویران ہے، در حقیقت ایسا دل ویران ہے۔ یہ رسول اللہ کا فیضان ہے جو ہمارے سینوں میں ایمان ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، ابھی خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یقین جانیے گا اگر آج آپ بات توجہ سے سنیں گے تو آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ ہو جائے گا، کچھ آپ کی نالج بڑھ جائے گی آج کی تقریر سننے کے بعد۔ پہلی چیز یہ ہوتی ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھا بن جائے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس سے گناہ چھوٹ جائیں، وہ گناہ کرنا چھوڑ دے، اس کا شمار بھی اچھے لوگوں میں ہونے لگے۔ ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی یا نہیں ہوتی؟ ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ کوئی اس کا ایسا دوست ہو، اس کا ایک ایسا ساتھی ہو جو اسے اچھا راستہ بتائے، برے راستے سے ہٹا کر اچھے راستے پر لا کر کھڑا کرنے والا اس کا کوئی دوست ہونا چاہیے۔ ہر آدمی کی یہ تمنا ہوتی یا نہیں ہوتی؟ اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ کوئی شخص ایسا ہو جب محشر میں لوگ گھبرا رہے ہوں، لوگ کانپ رہے ہوں، لوگ بھاگ رہے ہوں، تو کوئی اس کا ساتھی، کوئی اس کا دوست، کوئی اس کا ہمسایہ ایسا ہونا چاہیے جو اس کو میدان محشر سے بچا سکے۔ ہر آدمی چاہتا ہے۔ تو دیکھیے قرآن نے ایک بات کہی کہ اگر انسان اچھا بننا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہوگا، بات توجہ سے سننا۔ اور اگر انسان میدان محشر کی سختی سے بچنا چاہتا ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو آسانی سے جنت مل جائے، اس کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، وہ اللہ کا قریبی بندہ بن جائے، تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے قریبی بندے بن جاؤ گے۔ کیونکہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی حاصل کر لیتا ہے، تو قرآن نے اس کے بارے میں کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ بندہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف سب سے زیادہ ہوتا ہے، وہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، چاہے وہ انصاری ہو، چاہے وہ پٹھان ہو، چاہے وہ فقیر ہو، کسی بھی ذاتی کا ہو، اگر وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے سینے میں اللہ کا خوف موجود ہے، وہ پرہیزگار ہے، اس کا دل صاف ہے، تو وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس لیے ایک سوال حل ہوا، آج ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم اچھے بن جائیں، چاہتے ہیں نہیں چاہتے؟ کیا یہ چاہتے ہیں برے بن جائیں؟ بتائیے کیا چاہتے ہیں؟ اچھے بن جائیں۔ یہ تو نہیں چاہتے ہیں کہ آج سے ہی شراب ہاتھ میں آ جائے، یا ایک کی جگہ 2 بوتل ہتھے چڑھ جائیں، یہ پردھانی کے ٹائم پہ پردھان جی کی طرف سے 5 مل جائیں پھر ووٹ دیں گے، یہ تو نہیں چاہتے؟ نہیں، دل میں کیا ہے؟ چاہت کہ ہم اچھے بن جائیں۔ آج کل کیا ہوتا ہے، جب پردھانی کا ٹائم آتا ہے تو کچھ شرابیوں کے مزے ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں ہاں بھائی مزہ آئے گا، ووٹ جب دوں گا جب 5 بوتلیں گھر آ جائیں گی، اور وہ بھی کوالٹی والی ہونا چاہیے۔ اب میں نے تو شراب پی نہیں جو میں بتا دوں اس کی کوالٹی کیا کیا ہوتی ہے، لیکن بہرحال جو پینے والے ہوتے ہیں وہ ان کو کوالٹی بھی معلوم ہوتی ہے۔ جیسے جو آدمی کپڑا خریدتا ہے اس کو سب معلوم ہوتے ہیں، عورتوں سے پوچھ لو بھائی اس میں جال جٹ بہت ہے، اس کے دامن پہ کڑھائی نہیں ہے، بھائی اس میں جرکن زیادہ ہے، کرتی ہیں نہیں کرتی عورتیں باتیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مردوں کو عورتوں کے ساتھ کپڑے خریدنے نہیں جانا چاہیے، ورنہ شام کو پاگل ہو کے لوٹو گے، شکل نہیں پہچان ملے گی، لوگ کہیں گے بھائی کہاں سے آئے ہو، کیونکہ پورے دن دکان سے گھومے گی، اس کی پھر سوٹ سمجھ میں آئے گا 10 دکانیں گھومنے کے بعد، اس سے پہلے سوٹ سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ بھی آ جائے تو پھر یہ بہت بڑا اللہ کا کرم سمجھو، ورنہ تو ہو سکتا ہے وہ کہ میں تو بتائیے جاؤں گی کل اپاچی میں تیل ڈلوا لیو 200 روپے کا، ایسا ہوا نہیں ہوا۔ تو بات کیا چل رہی کہ ہر انسان آج کیا چاہتا ہے کہ اس کو وہ اچھا بن جائے، اس کو اچھے لوگوں کی صحبت حاصل ہو جائے۔ تو دیکھیے اگر کوئی انسان اچھا بننا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے۔
अच्छे लोगों के पास बैठना होगा। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मास्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे मतलब अच्छे लोगों के साथ हो जाओ, उन लोगों के साथ हो जाओ जिनका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ा हुआ। देखिए हदीस शरीफ के अंदर आता है जब मैदान महशर होगा तो कुछ बंदों से अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, देखिए अच्छी सोहबत का फायदा क्या होता, बहुत तवज्जो रखना है आपको। अल्लाह तबारक व तआला कुछ बंदों से कहेगा कि तुम भी जन्नत में चले जाओ, और वो बंदे कौन होंगे? अल्लाह वाले होंगे, वो छोटे बड़े सरकार होंगे, वो गौस पाक होंगे, ख्वाजा गरीब नवाज होंगे, और हजरत कुतुबुल मदार हजरत सैयद शाह बदियुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, ये अल्लाह वाले लोग होंगे। अल्लाह तबारक व तआला इन नेक बंदों से कहेगा, इन सालिहीन बंदों से कहेगा, इन परहेजगार बंदों से कहेगा कि तुम जन्नत में चले जाओ। देखिए अच्छी सोहबत का फायदा। तो मालूम है वो क्या कहेगा? वो अल्लाह के बंदे क्या कहेंगे? अल्लाह के बंदे कहेंगे कि ऐ मालिक, हम जब तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक साथ में उनको भी न ले जाएं जो दुनिया में हमारे साथ रहा करते थे, जो दुनिया में हमारे साथ नमाजें पढ़ा करते थे, सजदे किया करते थे, रुकू सुजूद किया करते थे, जब तक वो लोग हमारे साथ जन्नत में नहीं चले जाएंगे जब तक हम जन्नत में नहीं जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि अल्लाह वालों से मुरीद हो जाओ, इनका दामन थाम लो, अल्लाह वालों की मोहब्बत दिल में बसा लो। क्यों? क्योंकि कयामत के दिन इन लोगों की सोहबत काम आएगी। हदीस शरीफ में आता है जब किसी मोमिन इंसान की दोस्ती किसी मोमिन से होती है, ठीक है, किसी मोमिन की, इसको अल्लामा इब्ने कसीर ने तफसीर इब्ने कसीर के अंदर लिखा है, जब किसी मोमिन की दोस्ती किसी मोमिन से होती है, मिसाल के तौर पर दो मोमिन दोस्त, कितने हैं? दो, बोलो, दो मोमिन दोस्त हैं, उनमें से एक का इंतकाल हो गया पहले नंबर पर, पहले किसी एक का इंतकाल हो गया, तो पहला वाला अल्लाह से ये दुआ करता है मरने के बाद, क्या कहता है कि ऐ मालिक, जो मेरा दोस्त जिंदा रह गया है उसको भी हिदायत पर मौत देना, उसको जब तक मौत न देना जब तक वो हिदायत पर ना आ जाए, यानी उसको जब ही मौत देना जब वो तेरे नेक बंदों में शामिल हो जाए। तो देखिए अच्छी सोहबत का फायदा, जब अच्छा दोस्त होता है तो वो अल्लाह से क्या दुआ करता है कि मेरा जो दोस्त बाकी रह गया है उसको भी सीधे रास्ते पर मौत देना, कलमे तौहीद पर मौत देना। और जब किसी इंसान की दोस्ती किसी काफिर दोस्त से होती है, किसी बुरे दोस्त से होती है, और उनमें से एक मर जाता है, तो वो अल्लाह से क्या कहता है कि मालिक, जिस तरीके से मैं बुरी हालत में आया हूं, मेरे दोस्त को भी इसी हालत में लाना, इसी हालत में जैसे मेरी बुरी हालत पर मौत हुई है, इसको हिदायत के रास्ते पर मौत मत देना, इसको भी बुरे रास्ते पर ही देना। तो देखिए अच्छी सोहबत इंसान को इसलिए कहा जाता है सोहबते स्वाले तुरा स्वाले कुनन, अच्छों की सोहबत तुझको अच्छा बना देगी, अच्छों की सोहबत तुझको अच्छा बना। अब मैं आपको एक मिसाल दूं, तवज्जो से सुनना है बात को मेरी। कभी भी ऐसे लोगों की संगत इख्तियार ना करें, ऐसे लोगों के पास ना बैठें जो हमें बुराई की तरफ ला रहे हैं। हमेशा ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार करें जो हमारा रुख अच्छाई की तरफ मोड़े। अरे गौर करो, जब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए, तारीख गवाह है कि जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए और 90 लाख ने जवाब के चेहरे को देखा तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज ने 90 को सीधे रास्ते की तरफ मोड़ दिया, सीधे रास्ते की तरफ मोड़ दिया, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज सच्चे थे और सच्चों के साथ जो जुड़ता है उसको सीधा रास्ता मिल जाता है। गौसे आजम से जो जुड़ा सीधे रास्ते पर आ गया, ख्वाजा गरीब नवाज से जो जुड़ा सीधे रास्ते पर आ गया, हजरत कुतुबुल मदार से जो जुड़ा सीधे रास्ते पर आ गया, छोटे बड़े सरकार से जो जुड़ा सीधे रास्ते पर आ गया, शाह फजले रसूल बदायूनी से जो जुड़ा सीधे रास्ते पर आ गया, ताजुल कपूर से जुड़ा सीधे रास्ते पर आ गया, कादरी दूल्हा से जुड़ा सीधे रास्ते पर आ गया, मुक्तदर आका से जुड़ा सीधे रास्ते पर आ गया, और मेरे पीर से ताजदार सुन्नत से जो जुड़ा सीधे रास्ते पर आ गया, शहीद बगदाद से जुड़ा सीधे रास्ते पर आ गया। शर्त ये अच्छे लोगों से जुड़ो। मैं आपको एक मिसाल दूं, आपने एक नाम बहुत सुना होगा, शम्से मारेरा का, सुना है? और ना सुना हो तो मैं मुझसे आप सुन लीजिए। ये शम्से मारेरा, अगर आपसे कोई पूछे कि शम्से मारेरा किसको कहते हैं, तो मैं आपको शॉर्ट लफ्जों में बताऊं। आप ये कहिए कि शम्से मारेरा गौसे आजम का नाइबे मुतलक है, गौसे आजम के नाइब का नाम शम्से मारेरा है।
कोई पूछे शम्से मारेरा किसको कहते, तो कहो कि जिसके नाम से बलाएं टल जाती हैं उसको शम्से मारेरा कहते हैं, जो बुरों को अच्छा बना दे उसको शम्से मारेरा कहते हैं। अब मैं आपको बताऊं मिस्त्री साहब, तवज्जो से, हुआ ये, एक मुफ्ती साहब थे, अभी तो बहुत बातें मैं आपको बताऊंगा लेकिन आपको बात तवज्जो से सुनना। एक मुफ्ती साहब थे, ये बात तंबीहुल मखलूक में लिखी हुई, जो हुजूर शम्से मारेरा की सवाने हयात यानी उनकी हालात जिंदगी जिस किताब में लिखे गए हैं उस किताब में ये बात लिखी हुई। हुजूर शम्से मारेरा के एक मुफ्ती साहब मुरीद थे। कौन थे? मुफ्ती साहब। आजकल तो मुफ्तियों को पता ना कौन सा भूत सवार हुआ, एक से एक पागल पड़ा हुआ, बुजुर्गों को बुरा कह रहे हैं, फतवा लगा रहे हैं। कहां चला गया दिमाग इल्म के चक्कर में? तो बुजुर्गों को बुरा कहोगे? भाई इल्म तुम्हारा अपनी जगह है लेकिन बुजुर्गों की शान अपनी जगह। तो एक मुफ्ती साहब थे, तो वो शम्से मारेरा के मुरीद थे। उनका एक खादिम था, वो खादिम मुफ्ती साहब के सदा साथ रहता था। जब मुफ्ती साहब वुजू करते थे तो पानी का लोटा दे देता था, मुफ्ती साहब नमाज पढ़ते थे तो उनकी चप्पलें उठाकर एक तरफ को रख देता था। मुफ्ती साहब की खिदमत में हर वक्त उनका गुलाम लगा रहता था। एक मर्तबा यह हुआ कि मुफ्ती साहब मारेरा शरीफ तशरीफ ले गए हुजूर शम्से मारेरा की बारगाह में, सोचा कि अपने पीर से मिल लें। बात समझ में आ रही है? तो जब हुजूर शम्से मारेरा की बारगाह में मुफ्ती साहब पहुंचे तो मुफ्ती साहब ने ये सोचा कि क्यों ना दरगाह में जाकर मैं फातिहा पढ़ लूं। मुफ्ती साहब अंदर दरगाह में फातिहा पढ़ने चले गए। अब उनका जो गुलाम था उसके दिल में ख्याल आया, जब उसने हुजूर शम्से मारेरा का चेहरा देखा, मुफ्ती साहब के गुलाम ने जब शम्से मारेरा का चेहरा देखा तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी शम्से मारेरा से मुरीद हो जाऊं। क्या सोचा कि भाई इतना नूरानी चेहरा, वो चेहरा कि जिसको देखकर खुदा याद आ रहा है, क्यों ना मैं भी शम्से मारेरा से मुरीद हो जाऊं। ये बात उसने सोची, लेकिन उसके दिल में यह ख्याल आया कि अगर मैं भी शम्से मारेरा से मुरीद हो गया और मेरे आका जो मेरे मालिक हैं मुफ्ती साहब वो भी शम्से मारेरा के मुरीद हैं और मैं भी मुरीद हो जाऊंगा तो आका और गुलाम में कोई फर्क नहीं रहेगा। बात समझ रहे हैं आप? उस गुलाम ने क्या सोचा कि अगर मैं भी मुरीद हो गया तो मेरे जो मालिक है मुफ्ती साहब वो भी शम्से मारेरा से मुरीद है, मैं भी मुरीद हो जाऊंगा तो आका और गुलाम एक ही पीर से मुरीद हो जाएंगे, तो आका और गुलाम में कोई फर्क नहीं रहेगा। और दूसरी बात, उस गुलाम के दिल में ये बात आई कि भाई मेरे पास तो शीरीनी लाने के लिए पैसे भी नहीं है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है, एक तरीका मुरीदों ने बनाया है कि जब भी कोई मुरीद होता है तो उसके बाद पीर साहब को कुछ मिठाई खिला देता है खुशी में। तो उस गुलाम ने सोचा कि भाई मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि जिससे मिठाई खरीद के पीर साहब को खिला सकूं या बराबर में जो दूसरे मुरीदीन बैठे उनको खिला सकूं। ये सोच ही रहा था ये गुलाम। मुफ्ती साहब अंदर फातिहा पढ़ रहे दरगाह। ये गुलाम सोच ही रहा था कि इतने में हुजूर शम्से मारेरा तशरीफ ले आए। देखिए, अल्लाह का वली वही होता है जो दिलों को पढ़ लेता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने वलियों को ऐसा इल्म देता है कि वो अपने मुरीदों के हालात जान लेते हैं। तो अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि शम्से मारेरा जब तशरीफ लाए, इस गुलाम के चेहरे को जब देखा तो इसको बुलाया पास और कहा ऐसा है तो हमसे मुरीद हो जाओ। अभी इसके दिल में ये बात थी कि अगर मुरीद हो गया तो शीरीनी के लिए तो पैसे नहीं। समझ में आई? अब शम्से मारेरा ने इसकी दिल की बात पढ़ ली, कहा कि ऐसा है तो मुरीद हो जाओ, शीरीनी तुम्हारी तरफ से हम बंटवा देंगे। समझ रहे हैं बात को? इनको मुरीद कर लिया शम्से मारेरा ने, शीरीनी के लिए पैसे निकाल कर दिए कि जाओ शीरीनी ले आओ और बांट दो। अब यह हुआ कि मुरीद बना लिया, शीरीनी बट गई। उसके बाद मुफ्ती साहब जब आए तो उन्होंने अपने गुलाम की जूतियां, अभी तक क्या था कि गुलाम मुफ्ती साहब की जूती उठाता था, अब मुफ्ती साहब ने गुलाम की जूतियां उठाई और सीने से लगाई। देखिए, अच्छे लोगों की सोहबत कहां तक पहुंचा देती है। मसला यह है कि अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करें। अभी तक क्या था कि गुलाम मुफ्ती साहब की जूती उठाए हुए था। समझ रहे हैं ना आप बात को? अभी तक क्या था कि गुलाम मुफ्ती साहब के वुजू का लोटा उठाता था, लेकिन अब उल्टा हो गया, खुद मुफ्ती साहब ने उस गुलाम की जूतियां उठा ली और सीने से लगाई। अब लोगों ने कहा कि भाई ये तुम्हारा गुलाम है और तुम गुलाम की जूतियां उठाए हुए, क्या कर रहे हो आखिर? अब मुफ्ती साहब ने क्या जवाब? देखिए, उस गुलाम को शम्से मारेरा की सोहबत ने कहां पहुंचा दिया। मुफ्ती साहब ने कहा क्या करूं, जब तक ये जूतियां सीने से लगाए रहता हूं दिल को सुकून मिलता रहता। न जाने
मेरे इस गुलाम पर शम्से मारेरा की नजर ने क्या करम कर दिया, न जाने इस अच्छे मियां ने कैसी अच्छी नजर डाल दी है, इसको कैसा अच्छा बना दिया है। जब तक इसकी जूतियां सीने से लगी रहती हैं दिल को सुकून मिलता रहता है। तो समझ में आई अच्छों की सोहबत कितना फायदा पहुंचाती है। शर्त यह है कि अच्छे लोगों की संगत इख्तियार करें। अभी मैं आपको बताऊं इन्हीं अच्छे मियां का एक वाकया। एक मर्तबा एक साहब शराब पीते थे बहुत। अच्छा होता ही है, शराबियों का तो दौर है, उनके तो मजे ही होते हैं प्रधानी के टाइम पे। तो अब ये हुआ कि एक शराबी शम्से मारेरा की खिदमत में आए। अब दिल में इनके ये था, ये इनकी खासियत थी कि ये 2 घूंट जब पी लेते थे तब बात करते थे। जैसे जो पुड़िया खाते हैं, जब पुड़िया मुंह में डाल लेते हैं लोग तो वो जब ही बोलते हैं जब बहुत अहम बात बोलना होती है, वरना जब तक पुड़िया थूकते नहीं, क्योंकि तो पुड़िया की कदर उन्हें मालूम होती है। जब बहुत अहम बात बोलना होगी तब थोड़ी देर रोक के आपको थूकेंगे, फिर आपको बात बताएंगे कि अच्छा ये बात थी, क्योंकि उन्हें पता है भी 10 रुपए गए पुड़िया। तो ऐसे ही वो शराबी की एक आदत थी कि जब तक 2 घूंट पी ना लेता था जब तक बात नहीं करता था। अब वो शम्से मारेरा की खिदमत में आ गया। अब शम्से मारेरा की जब खिदमत में आया तो दिल में ये इरादा हुआ कि मैं क्यों ना शम्से मारेरा से मुरीद हो जाऊं। बताने का मकसद ये है कि सोहबत अच्छे लोगों की हो। जब अच्छे लोगों की सोहबत में आएंगे तो हर बुरी चीज छूट जाएगी, क्योंकि अच्छों की सोहबत अच्छा बना देती है। समझ रहे हैं ना आप बात को। अब ये आए, अब इन्होंने दिल में सोचा अगर मैं मुरीद हो गया तो मेरी तो ये आदत है कि हर 2 मिनट पे 2 घूंट पीता हूं, और पता चला मुरीद होते पे ही मैंने वो 2 घूंट पी लिए तो फिर तो बवाल पड़ जाए। बहुत देर सोचा कि मुरीद हूं या ना हूं, क्या करूं, मुरीद हुआ जाए या ना हुआ जाए। सोचता रहा। इतने में हुजूर शम्से मारेरा ने इनको बुलाया और कहा क्या सोच रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे शराब पीता हूं और हर 2 मिनट के बाद मुझे 2 घूंट पीना पड़ते हैं। अब मैं मुरीद होना चाहता हूं, लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुरीद हो जाऊं तो फिर शराब कैसे छूटेगी। देखिए अल्लाह वाले, जो लोग वाकई अल्लाह वाले होते हैं, जिनका ताल्लुक वाकई अल्लाह से जुड़ा होता है, वो इसी तरीके से लोगों की इस्लाह करते हैं। अब क्या हुआ, शम्से मारेरा ने इनसे कहा कि ऐसा है तुम हमसे मुरीद हो जाओ। क्या कहा, तुम हमसे, पीछे से बोलो, क्या कहा, तुम हमसे मुरीद हो जाओ। खैर ये मुरीद हो गए, लेकिन शम्से मारेरा ने एक शर्त लगा दी कि ऐसा है तुम बाकी हर टाइम शराब पीना, लेकिन जिस वक्त तुम हमारे पास रहोगे उस वक्त शराब नहीं पियोगे। इन्होंने सोचा चलो थोड़ी देर सब्र कर लेंगे, क्या है इतना तो चल ही जाए, ऐसा है नहीं है, थोड़ी देर कुछ क्या चल ही जाएगा काम। जैसे जब बिरयानी सामने हो तो थोड़ी देर आदमी मना करता, अरे मैं नहीं खाऊं, अंदर से उसका दिल कर रहा होता कि अगर अभी घर होता तो 2 के 4 उड़ा देता प्लेट, लेकिन क्या है मेहमानी है, समझ आई। अगर मेहमानी में खा ली तो औरतें बाद में प्लेट चेक करती है, बहुत खाना खाया, 2 ही बिस्कुट छोड़े। तो अब ये हुआ कि इन्होंने ये बात तय कर ली कि भाई ऐसा है थोड़ी देर की बात है, हजरत की खिदमत में थोड़ी देर तो ही रहना है, थोड़ी देर नहीं पीऊंगा। इन्होंने शम्से मारेरा से कहा आप मुझे मुरीद कर लें, कुछ देर के लिए मैं सब्र कर लूंगा, थोड़ी देर नहीं पीऊंगा। शम्से मारेरा ने कहा ठीक है भाई मुरीद हो जाइए। अब शम्से मारेरा से ये मुरीद हो जाने के बाद इन्होंने सोचा कैसे ही गुसल खाने में जाकर थोड़ी सी पी ली जाए। जैसे जिनका रोजा होता है वो क्या करते हैं, कोई पर्दा आड़ हो जाए और उसमें जाकर खा लें चुपचाप हिसाब से। और आजकल तो 2 बाहर लगा दिए जाते हैं, मतलब जैसे औरतें एक दूसरे की रखवाली कैसे करती हैं, 2 बाहर लगा देती हैं। ऐसा तुम देख रही कोई आए तो थोड़ा खांस दियो, फिर मैं ढलैया नीचे को रख दूंगी। तो इसका ये मतलब नहीं कि मैंने ऐसी प्रैक्टिस की है, ये तो एक मैं तजर्बे की बात बता रहा हूं। अब इन्होंने ये बात कर ली शम्से मारेरा से कि भाई ऐसा है हम मुरीद हो जा रहे हैं शराब। अब मुरीद होने के बाद जैसे ही गुसल खाने में पीने के लिए गए, अपने घर आकर शम्से मारेरा को गुसल खाने में मौजूद पाया, और ये अब तो फंस गई गाड़ी, हटे वहां से। आप सोचा कि ऐसा है छत पर जाकर पी लिया जाए। जैसे ही छत पर चढ़े शम्से मारेरा को मौजूद पाया। अब इन्होंने कहा ऐसा है जो 2 मंजिला है उस पर चढ़कर पी ले, वहां कोई नहीं देखेगा। वहां भी शम्से मारेरा को मौजूद पाया। अब इन्होंने कहा एक ही चांस है, कमरा बंद करो अंदर से और ताला लगा लो, अब तो कोई नहीं आए। जैसे ही इन्होंने ताला बंद किया और पीने के करीब करीब शम्से मारेरा को मौजूद पाया, अब ये कदमों पर गिर पड़े और कहा हुजूर आज के बाद नहीं पियो।
तो देखिए अच्छे की सोहबत ने किस तरीके से अच्छा बना दिया। हुजूर शम्स मारेरा अपनी करामत के जरिए जहां भी वो पीने का इरादा करता था वहीं पहुंच जाते थे। ये होते हैं अल्लाह वाले। इसलिए कुरान ने क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, यानी अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करो। हम क्या कहते हैं जब हम नमाज पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं मालूम? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, क्या कहते हैं? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। क्या कहते हैं? सीधे रास्ते पर चला। कौन सीधा रास्ता है? कौन सा? सवाल ये पैदा हुआ, सीधा रास्ता है कौन सा? तो कहा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो उन लोगों का रास्ता है जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। और इनाम किन बंदों पर किया है? नबियों पे इनाम किया है अल्लाह ने, शहीदों पे इनाम किया है अल्लाह ने, नेक बंदों पर अल्लाह ने इनाम किया। तो इन नेक बंदों के रास्ते पर चलने की दुआ हम कब करते हैं? इहदिना सिरातल मुस्तकीम के। समझ में आ रही? तो हम किन लोगों के रास्ते पर आने की दुआ करते हैं? नेक लोगों। तो हमें चाहिए कि हम हमेशा अच्छे लोगों की संगत इख्तियार करें, अच्छे लोगों की सोहबत। अच्छे लोगों की सोहबत हमेशा काम आती है। एक बात मैं आपको बताऊं, हुआ ये, हुजूर सरकार मुक्तदिर रज़ी अल्लाह ताला नव्वर अल्लाहु मरकज़ा, सरकार मुक्तदिर का विसाल जो हुआ फजर की नमाज के आखिरी सजदे में हुआ। कैसे हुआ? फजर की नमाज के आखिरी सजदे में हुआ। एक बार बोलिए सुभान अल्लाह, पीछे से बोलो सुभान अल्लाह, ऐसे जगते रहो। तो हुजूर सरकार साहिबुल इख्तिदार का एक मुरीद था, मुरीद हो गया वो। अब कुछ टाइम के बाद ये हुआ, वो मुरीद मुंबई का रहने वाला था, उसके हालात थोड़े बिगड़ गए। जब उस मुरीद के हालात बिगड़े तो उस मुरीद ने यह चाहा कि मैं अब दरिया में कूद कर खुदकुशी कर लूं। अपने घर से निकला। अपने घर से किस इरादे से निकला? कि मैं दरिया में कूद कर क्या कर लूंगा? खुदकुशी कर लूं। चला भाई। अब जैसे ही दरिया के पास पहुंचा, ठीक है, तो इधर शम्से जो हुजूर सरकार साहिबुल इख्तिदार थे, हुजूर मुक्तदर आका थे, हुजूर मुक्तदर आका की एक आदत थी कि वो अपने पैसे अपने पास नहीं रखते थे, बल्कि अपने खादिम के पास रखते थे। उसी टाइम हुजूर सरकार मुक्तदर ने अपनी उस गुलाम से पैसों की एक पोटरी ली, और लेने के बाद, बदायूं में ही थे आप, सरकार मुक्तदर बदायूं में रहे, लेने के बाद उस मुंबई पहुंचकर, करामत के जरिए मुंबई पहुंचकर उस मुरीद का हाथ पकड़ लिया और कहा तुम क्या करने जा रहे हो? कहा हजरत हालात खराब हो गए, कोई चारा नहीं दिख रहा था, तो मैं अब खुदकुशी करने जा रहा। आपने कहा लो ये पैसे लो और इससे अपना गुजारा कर लेना, लेकिन खुदकुशी मत करना, खुदकुशी करना हराम है। देखिए एक पीर ने अपने मुरीद को मरने से बचा लिया। अब कुछ टाइम के बाद वो मुरीद जब बदायूं आया तो उसने लोगों से जिक्र किया कि फला तारीख को हजरत हमारी मदद के लिए गए। लोगों ने कहा कि भाई फला तारीख को तो हजरत बदायूं में ही थे। उसने कहा नहीं, फला वक्त और फला तारीख को हजरत मुंबई में मुझे ऐसे ऐसे बचाने के लिए गए थे। लोगों ने कहा नहीं, उस वक्त में हजरत बदायूं में मौजूद थे। आखिरकार ये बात जब काफी इसमें चर्चा हुआ तो ये बात उस खादिम तक पहुंची जो खादिम सरकार मुक्तदर के पैसे रखा करता था। उसने कहा हाँ फला तारीख को हजरत ने ये पैसों की पोटरी मुझसे ली थी, लेकिन ये बात भी हक है कि उस दिन हजरत बदायूं से बाहर नहीं गए थे। तो देखिए बदायूं में रहते हुए उस मुरीद की मदद कर दी। समझे आप बात को? तो अल्लाह वाले जो होते हैं उनकी सोहबत हमेशा इंसान को अच्छा बना देती है। शर्त यह है कि इंसान अपना ताल्लुक अल्लाह वालों से जोड़ने की कोशिश करे। अब मैं एक बात और बताऊं, आप लोग ही बताइए, पक तो नहीं रहे, वरना फिर तकरीर खत्म भी हो सकती। चलो आखिरी बात पे आ जाते हैं, आप लोगों को देख के बस आखिरी बात है। अब चूंकि बात चल रही है शम्से मारेरा की कि जो लोग अच्छे होते हैं उनकी सोहबत इख्तियार करने से क्या फायदा होता। एक औरत थी, उसका शौहर बदअकीदा था। ये सब बातें तंबीहुल मखलूकीन में लिखी हुई हैं। तंबीहुल मखलूक में एक औरत थी, उसका शौहर बदअकीदा था। बदअकीदा मतलब बुजुर्गों को मानता नहीं था, वो हमेशा बुजुर्गों की बुराई करता था। वो औरत हुजूर शम्से मारेरा से मुरीद थी।
ایک دن اس عورت نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا جو شوہر ہے وہ اس طریقے سے بزرگوں کو برا بھلا کہتا ہے اور وہ کبھی بھی آپ کا ذکر سننا پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ عورت ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی تھی، آپ اس کے لیے دعا کر دیں کہ وہ ہدایت پر آ جائے۔ ٹھیک ہے، جب صبح ہوئی، یہ بات عورت رات کو کہہ کر آئی سمجھے مارے رہتے شام کے وقت، جب صبح ہوئی تو اس کا شوہر اپنی بیوی سے صبح اٹھتے ہی بولا کہ بھئی ایسا ہے میرے کپڑے تیار کرو، مجھے جانا ہے، مہرہ جانا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ بھئی آج تک تو تم مہرہ کے بزرگوں کو برا بھلا کہتے تھے، اب آخر کیا وجہ ہوئی کہ تم ایک دم مہرہ جانا چاہتے ہو؟ تو اس آدمی نے معلوم ہے کیا کہا؟ اس آدمی نے کہا وجہ یہ ہے کہ رات بھر مجھ پر کیا گزری ہے یہ میں ہی جانتا ہوں، عافیت اسی میں ہے کہ تم مجھے کپڑے دے دو اور میں مہرہ جا کر شمس مہرہ کا مرید ہو جاؤں۔ تو یہ ہوتی ہے اچھے لوگوں کی صحبت کے فائدے۔ جو لوگ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کرتے ہیں، حقیقت میں ایسے لوگ ہی کامیاب کہلاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اچھوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔